start with the intro first. So there are three parts of your GD: group discussion, introduction, your body, and your conclusion. All right. So body we have to all give all the points on the spot. And let's start the intro. See, intro includes five things. Number one is your greeting. Number second is your name and the name of the topic. Number three is a definition or any meaning or any generic view about the topic. And number four is your opinion, that what you think about the topic. All right. And number five is open the house for discussion. Means you have to that invite all of you that let's start a discussion. All right. So just have a look to the document first, and we'll make the proper intro. Yeah, please have a brief look to the document. This is a document. So I'm going to start the video and teaching you how to start the video. Alright. So I have a Ma'am, your voice is not properly coming. Am I audible now? Yeah, ma'am, now it is audible. Now is it audible? Yes. All right. Okay. So today's okay. I'm starting again. Okay. So how to start with the intro basics. Good evening, everyone. My name is Shikha, and today the topic of discussion is role of ethics in business. All right. And what do you understand by ethics? You have to give that definition. Okay. So ethics in business is basically moral principles, which that organization runs business. Fine. Ethics बिजनेस में वो होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन और जो एक एम्प्लॉय का रिलेशन है वो स्मूथली रन करता है. ऑलराइट. कि ट्रस्ट क्या होता है और बेसिकली कैसे वो रेपुटेड रह सकती है ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर सम एथिक्स इन बिजनेस. उनके थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है. ऐसा नहीं है कि हम कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वी जस्ट हमारे पास एम्प्लॉयज हैं या कुछ है, हमारा कोई एज सच रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, तो इट कैन नॉट बी रन प्रॉपर. ऑल राइट. ठीक है. दैट आर एथिक्स इन बिजनेस. ठीक है. Next, if I would have to give my point of view, so ethics in business is very much important as it means maintains discipline. It makes our organization run smoothly so that we have a lot of some criteria. There is a hierarchical structure in an organization. We just have a look to the document, and at the end, I would say that now I invite you all for the discussion. So this is how you have to give your intro part. Just please have a look to the document. This is role of ethics in business. There are some points have been written. There are three dimensions here. Importance of business ethics, areas of business ethics, that where that business ethics is important basically, and what are the challenges in business ethics. All right. These are the three domains of this topic. So we have to discuss this topic on these three domains. All right, guys. So have you taken an overview of this? Guys, am I audible? Yes, ma'am. All right. So shall we start? 2 minutes. Okay, just tell me who is going to introduce the topic. Ma'am. Reena, you're going to introduce the topic? Yes, ma'am. All right. And who is going to be conclude the topic? Yes, ma'am. Aditya, you're going to conclude the topic? Yes, ma'am. All right. Now, guys, see, this document is just for your understanding the topic or like that. Your points shouldn't be similar to that. You can give some different point of view like that. Okay. So please take your 3 minutes to prepare and then start. Reena, you may start with your intro part. All right. After Yes, 3 ma'am. minutes. Okay.
Okay, Reena, please go ahead. Please start. Good evening, everyone. I'm Reena. I take the initiative to introduce the topic. The topic given is role of ethics in business. Let me start by defining what is ethics. Ethics are the principle or the morals or the values which help us to make a decision wisely and also to create discipline within the organization. In my opinion, ethics create a balance between profit making and how to be morally ethical. And also, I have seen that in every organization or every PSUs has some values such as integrity, sustainability, environmental protection, and women empowerment. So I think we should discuss the challenges and how we can create more ethical practices in the organization. Now I open the debate for all of you. So absolutely, Reena, I agree with you. So ethics is something which is non-negotiable for a company. For example, if a company which is service-based, so if because of some activity from the company's clients or from the company's policies, the clients lose trust in the company, then it's become extremely challenging for that company to continue business. So that's why ethics should be one of the most important things a company should take care of. हाँ बिल्कुल, एथिक्स कंपनी को ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं। अगर कंपनी अपने एथिक्स मेंटेन रखती है तो पीपल्स का उस पर बिलीव बढ़ता है। Also, I would like to say that apart from this trust, there is a key factor that is associated with the company, which is we say reputation. Like companies who is following the ethics becomes easier to communicate with for the investors and for the consumers' point of view. A reputed company having a good trust value ensures their users and investors that in the future that they will be sustainable and in the long run it will be beneficial for them. I totally agree with what is Aditya is saying, that we can take the example of two companies of India, like one is Tata and other one is Byju's. So both are at a different level. Like Byju's has lost the trust of the people because they played with the ethics of the people and the customer, due to which the company has started fallen down and they are in the now they are bankrupt. The other example is like of Tata, which is managing its profit, and the customer acquisition is also good of Tata. So these two companies are like at different level in terms of ethics. Apart from this, like there are certain challenges. The challenges may be like there may be certain situations or action that needs to be taken by the board of directors, whether in case they look for higher profits, they may divert their focus to some non-ethical means terms. For example, like they may use some copyrights of other organizations, which will just uh, cause a bad influence in the competition. So such things also needs to be taken care. To Yeah, हाँ, create यही रीजन है कि जो बायजूस है उसका डाउनफॉल हुआ है क्योंकि उसने अपने एथिक्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। बायजूस जो मेन बनी थी वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनी थी, पर इसने और भी कई सेक्टर्स के अंदर काफी अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है कि जिसके कारण इसका डाउनफॉल हुआ। yeah, if a company is known to be ethical and is reputed, then employees are happy to be associated with such a brand name. So that in turn creates healthy competitions and a sense of fulfillment among the employees, which is at the end of the day needed. ethical means like टाटा भी है और जियो भी है, मतलब कंपनी। और तो उन्होंने मतलब जो पीपल्स के लिए बहुत काम करा, लाइक CSR एक्टिविटीज बहुत कंडक्ट करी है रेगुलर बेस पे कॉर्पोरेट। लाइक हॉस्पिटल्स में भी टाटा का मुकेश हाँ, अंबानी काफी हॉस्पिटल। सोशल वर्क करते हैं। टाटा टाटा कंपनी है वो काफी सोशल वर्क के अंदर भी इंक्लूड है। तो इसके कारण एक इमेज क्रिएट होता है पीपल में, और जो जो भी लोग हैं उनके मन में कि हाँ कंपनी के अंदर ट्रस्ट हो, उसी के कारण इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है और वैल्यूएशन भी इंक्रीज होता है। Yeah, definitely. When the trust in a company increases, then that value reflects in the market, and thereby the profits will also increase. Yes, I Also, agree हाँ, ये with हम देख you. सकते हैं कि जो Also, टाटा का शेयर है वो भी काफी activities इंक्रीज like हुआ है कोविड के बाद, क्योंकि लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कंपनी पे।
हाँ, और ये भी है कि जब कोई कंपनी एथिकल है तो जो भी वो सीएसआर या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रही है, उससे जो है वो सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट होता है। जैसे कि वुमेन्स के लिए स्किल सेंटर खोले जाते हैं या बच्चों के लिए जो है एजुकेशन हब्स क्रिएट किए जाते हैं। ऑल्सो इसके अलावा आई थिंक एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि जो भी कंज्यूमर्स है और जो भी कंपनी है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, और उसके लिए एक रेगुलेशन अथॉरिटी भी होनी चाहिए। बट बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो उसी की वजह से जो है वो काफ़ी मेंबर्स कंपनीज में उसका मिसयूज करते हैं, ताकि जो है प्रॉफिट मेकिंग को ज़्यादा कंसिडर किया जाए रादर देन एथिकल। Yeah, ethical approach also ensures that employee rights are ensured. This in turn helps in employee retention rates because the employees are happy to be associated with such a brand name. यस, अगर कंपनी एथिक्स को फॉलो करती है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी कंपनी के लिए अच्छा फील करते हैं और वो अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर पाते हैं, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। Yeah, I agree with you, Himran. बट आई थिंक कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब क्योंकि कंपनी को अपनी एक अच्छी इमेज प्रोजेक्ट करनी होती है, तो वो अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस का तो मार्केट में पब्लिसाइज करते हैं, बट बीनीथ दैट देयर इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस विच आर गोइंग ऑन। हाँ, बिकॉज वो शो ऑफ करते हैं कि वो एथिकल वर्क कर हाँ। रहे हैं पर एक्चुअल में वो इनएथिकल वर्क कर रहे होते हैं। हम्म। Also, but sometimes it becomes necessary for companies to take drastic steps. For example, like this laying off thing we talk about. So it may be it's a subjective thing. It may not be an ethical aspect when seeing at the employee level, but the company may find it like sometimes hard to continue with such investment in their employees. So for such cases, they usually take such drastic steps. हाँ, अगर So एथिकल प्रैक्टिस के बारे में देखें तो अगर कोविड के दौरान देखें तो काफी कंपनीज का राइज हुआ था, जो ई टेक कंपनीज है उनका काफी राइज हुआ था। उन्होंने एक मतलब अपना कॉन्सेप्ट रखा कि हम लोगों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, पर उन्होंने अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और अभी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंपनीज जो ई टेक कंपनी थी कोविड के दौरान स्टार्ट हुई थी उनका डाउनफॉल हुआ है। I totally agree with Imran that काफ़ी कंपनीज ने ले ऑफ भी स्टार्ट कर दिया विदाउट सेंडिंग द नोटिस। उसके कारण मतलब काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने अपना जॉब लूज़ करा है विदाउट सर्विंग द नोटिस। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, कि जॉबलेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और मतलब एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो मतलब कोई कंपनी को इंश्योर करना चाहिए अपने एम्प्लॉय के बारे में कि अगर वो ले ऑफ कर रहे हैं तो एक प्रॉपर नोटिस से पीरियड भी सर्व करने का टाइम देना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने नहीं करा, लाइक गूगल, अमेज़न, उन्होंने काफ़ी ले ऑफ करा है मतलब कोविड के बाद। अगर हम इन एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो हम अगर रिसेंट में देखें तो जो यूपीएससी की कोचिंग्स है वो केवल ही प्रॉफिट्स के लिए काम कर रही है, तो उसका हमने डिसएडवांटेज भी देखा है कि अभी रिसेंटली 3 बच्चों की जान चली गई। But I agree with Hemraj, but I would like to add one point. How much a company is spending on the ethical practices is always dependent upon how much revenues the company is creating, कितना वो profit create कर रही है। तो ये basically मतलब टू एज वाली स्वॉर्ड हो जाती है, कि जो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है वो एथिकल प्रैक्टिसेस कर सकती है, बट जिस कंपनी के इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है तो फिर वो अपना जो फोकस है वो प्रॉफिट मेकिंग पे ही देगी, एंड उसके लिए समटाइम्स दे गो फॉर अनएथिकल एक्टिविटीज आल्सो। Actually, आई थिंक Rina, उनको I प्रॉफिट और disagree एथिक्स के with you अंदर here. बैलेंस बना के Some चलें of तो भी वो प्रॉफिट के अंदर जा सकते हैं। Actually, I would like to disagree with you, Reena, because sometimes there are small startups or etc. which are working for the upliftment of the society. They do not care about the profit making at all in the initial stages. What they are doing at the initial stages is like upholding the rights of those employees or creating a skill center or something like that. So I would not like to agree with your point. also, like when it comes to profit, this ethical thing may be like for initial phases seems to be a loss to the company, but like it may give a short-term profit,
but in case the company adheres to his ethical stigma, then in the long run, this trust thing will take the company to give a big leap against its new coming competitors. Because this trust thing is something which needs some time to get built up. Whereas in case the newcomers, I will take just some examples like some brands that we know about, which are most reputed. We will just instantly look for them instead of these newcomers. Just because although the new companies will be doing good, but this trust thing which they have built with their ethical belief is something that's keep them steady at their positions. So when it comes to profit, this ethical thing is not something which it's hurting them. There may be other things that the company should look for instead of devaluing their ethics over profit. आई टोटली एग्री विद आदित्य व्हाट ही सेड। जब इनिशियली जब बायजूस ने मार्केट में एंटर करा था तो उन्होंने मतलब बहुत फॉल्स एग्जांपल दिए थे कि देयर प्रोडक्ट इज गुड एंड उसकी वजह से कुछ कस्टमर मतलब उनके ट्रैप में भी आए थे। और Danish, could you hear me? यस मैम। Yeah, please little bit more louder. आप अच्छे से ऑडिबल नहीं हो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। ओके, तो हम रिसेंटली एक एग्जांपल ले सकते हैं बायजूस का, जिसका केस हुआ था, जिन्होंने कोविड के टाइम पे स्टार्टअप रन करा था ऑनलाइन एजुकेशन का। उन्होंने अपना मतलब प्रोडक्ट सेल करा था ऑनलाइन, तो उसमें काफ़ी ट्रैप हुआ था और बच्चों ने काफ़ी परचेज किया। लेकिन जैसे जैसे पता लगा कि वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कि वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, और बाद में कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ और बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ, तो उसके कारण फीडबैक भी गंदा गया। तो मार्केट में सिनेरियो अच्छा नहीं था उनके, तो उसके कारण एथिकल वैल्यू भी डिस्टर्ब हुई और उनका जो ग्रोथ था वो सडनली स्टॉप हुआ 2 to 3 ईयर्स के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कस्टमर एथिक्स और वैल्यू के साथ नहीं खेल सकते लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ग्रोथ डिस्टर्ब हो चुकी है उस कंपनी की। बिल्कुल दानिश, अगर हम बात करें कि जो कंपनीज ने वर्क एथिक्स के साथ सबसे ज्यादा खेला है, उनके अंदर हम जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बनवाने के लिए काफी ज्यादा कस्टमर्स को लूटा है। Himraj, I would like to add here that there was a company a few years back which came into news. It was mainly a company which sold baby food products, and there were some particles in that product which were not at all which were harmful for consumption. So that adversely affected the company, and thereby I think it got closed as well, because it was trying to manipulate with the customers' beliefs and trust, and like putting the human health at risk. हाँ, अगर जो वर्क के अंदर इन एथिक्स को फॉलो करते हैं उनके अंदर जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी काफी आगे हैं। जैसे कि जेई की कोचिंग के अंदर भी वो भी काफी बच्चों को अलग अलग वादे करके बुला तो लेते हैं, पर वो उस तरीके से डिलीवर नहीं करते उनको। I totally agree with Imran what he said. The coaching institutes, many coaching institute doesn't follow the rules and ethics. बट वो इतने बड़े क्लासरूम में मतलब 400 to 500 स्टूडेंट्स एकोमोडेट करते हैं, फिर क्लासेस कंडक्ट करते हैं, और सर्टनली मतलब 10 to 20% स्टूडेंट ही लर्न कर पाते हैं। और फीस जो पे करता है हर स्टूडेंट लाइक अराउंड 2 to 3 लाख पर मंथ, और मतलब सबका सिलेक्शन होता भी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी इम्पार्ट नहीं कर पाते हैं इंस्टीट्यूट को एक प्रॉफिट के चक्कर में। तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड। Also, we have discussed about the problems, so I thought of this solution. It may be already existing, but I would like to point that there may be some kind of regularization or certain rules, set of rules that can be made. Although ethics is something which is flexible or it should not be imposed, but there may be some aspects which deeply hurts the both the user, the investors and the consumer. So there should be certain kind of not strictly regulations, but a flexible approach between the organization and its users, so they can communicate their issues. So in that case, the company or organization may be well aware of what's in which direction their organization is moving on, right? And accordingly, they can just take decisions. हाँ बिल्कुल आदित्य, इस डायरेक्शन के अंदर गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट लॉ बना सकती है।
Yeah, but I'm just saying that ethics is something which I don't believe should be very much strict. अब एक रेगुलेशन बना लेने में मतलब एक बाउंडेडनेस आ जाती है या फिर एक स्ट्रिक्ट वो हो जाता है, सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं। तो एथिक्स में चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जो थोड़ा सा मतलब कंपनी के पास आज़ादी हो सेट करने के लिए, हाँ, और अगर मिनिमम ऐसे सेट ऑफ रूल हो और बाकी की कंपनी को हाँ फ्रीडम हो। हाँ लगभग कुछ ऐसा। Guys, please conclude the topic. Okay, everyone. I think this topic that we have discussed have lot many points that we have discussed. So I would like to conclude by mentioning all the points that everyone has presented so far. So the first and the foremost thing that we have discussed about is that ethics yeah, invokes trust among the people, and also this trust it just converts into the reputation of the company. And we have just discussed some examples this Tata with and compared Tata and the Byju's, one of our friend, and they start Tata performing very well since the very beginning because it has adhered to its certain ethics. For example, there, as we have mentioned, the corporate social responsibility thing, and also we have seen like Byju's, which people soon recognize that it's not a welfare company, rather it's just a profit-making machine. So within a few years, it just people just recognized, and all of a sudden its valuation got decreased. So we recognize that the ethics play important role in the not only in improving the rights or belief of the people to the company, but also its valuation. And also, this ethics improves the competition. This ethical behavior does not allows the organization to have faith in something cheating kind of thing. For example, copying others' products. So, like in case the company will be adhered to its set of rules, then they can be more productive and then they can think out of the box. So they can just, all of them can create some different things for different people. So it will be just healthy. And also, the employee which will be working under the organization, under the umbrella, will be feeling that their rights are with them and they won't feel terrorized by the organization. So also they can perform well without any fear. And also, we have discussed about the remedies, like how a company can be or be on its path, the regularization kind of thing. Although not strictly regularization, but something like the feedback related. So company can listen to its employees and its users, and can well decide how in future they can take the steps so they can balance their profit and their rules for the well-being of them and for others who are related to that organization. All right. So are we done? Yes, ma'am. See, गाइस टॉपिक बहुत अच्छा था, ठीक है, एथिक्स इन बिजनेस बेसिकली। बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोग थोड़े और ज्यादा पार्टिसिपेटिव हो सकते हो, राइट? आप लोगों ने पॉइंट्स काफी अच्छे दिए, ठीक है, बट थोड़ा और ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है। ऑल्सो आदित्य, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। आपने कंक्लूजन दिया है, राइट? Yes. ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं से पढ़ के बता रहे हो, ठीक है। आप देखो, मुझे नहीं पता, आप अपने आप से भी बता रहे हो तो भी प्लीज मेक एन आई कॉन्टेक्ट। आपके पास 4-5 लोग और बैठे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू गिव योर प्रॉपर एक्सप्रेशन व्हाइल यूर स्पीकिंग। यू आर सपोज टू लुक डाउन, कि आप नीचे देख के बात करो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और आपका कंक्लूजन बहुत लंबा था। कंक्लूजन में सिर्फ हमें प्रॉपरली सबके बिहाफ पे कंक्लूड करना होता है। ऑलराइट, ओके, ओके फ्रेंड्स, ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनिशिएट, I would like to take initiate to conclude the topic. So we have discussed very good points, or we had a healthy discussion on this particular topic. That topic, that a relevant topic you can add that relevant word, क्योंकि बहुत अच्छा topic था, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो। So we have discussed different kind of points. आपने बोला that we have discussed a lot of point like that. तो आप 2-3 जो भी आपको points याद है, किसी ने बोले तो आप वो बोल सकते हो कि रीना had said that, or Rishabh said that, like that. Okay. So although we had made a concession like that, so ethics should be in the business or like that.
ठीक है, सिर्फ इतना, ऐसे शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए। आपने इतनी मिनट्स का मतलब कंक्लूजन दिया, उसमें एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ह्यूमनाइजेशन प्रॉपरली आपके थॉट्स हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रॉपरली आप बिल्कुल ही मेमोराइज कंटेंट बोल रहे हो समथिंग। और राइट Mhm. आदित्य, Yes, ma'am. पार्टिसिपेशन है, लेकिन जो पॉइंट्स आप बोल रहे हो उनको थोड़ा सा प्रॉपरली, इतना ज्यादा इलैबोरेट नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि और भी लोग हैं वहां पे, है ना। और कंक्लूजन जब आप दे रहे हो बहुत ही शॉर्ट, Hello? मैम आपकी वॉइस Hello? ब्रेक हो रही है। ऑलराइट, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। Voice break हुई एम आई ma'am. ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. हाँ यस। Am I audible now, guys? Yes, हाँ ma'am. हाँ हाँ, Yes. यस Yes, यस मैम। ma'am. All right. So Aditya, please work on that. All right. Okay, ma'am. Hemraj, Sure. are you there? हाँ यस मैम, आई एम हियर। ओके हेमराज, आपने जितने भी पॉइंट्स दिए आपने सब लोगों के साथ एग्री किया है ना, कि हाँ आप ठीक हम्म बोल रहे हो ऐसा कुछ। तो हेमराज मेरे को एक बात बताओ, जब आप पॉइंट्स बोल रहे हो तो आपको उसको थोड़ा सा एलेबरेट करना पड़ेगा ना, आपको अपनी बात हम्म उसको मतलब पूरा करना है। ऐसा लगा कि जैसे कोई और कोई पॉइंट बोल रहा है तो उसकी बात पूरी कर रहे हो, और वो बहुत ही मतलब हम्म फ्रेजेस में ही आपका पॉइंट खत्म हो रहा है। कि मतलब बिल्कुल हम्म ऑपोजिट होगा, जैसे आदित्य के पॉइंट थोड़े लंबे थे तो आपके बहुत छोटे थे। फेवरेट हम्म पॉइंट सारे अच्छे थे, आपने अच्छे मतलब एरियाज को जो है एग्जैगरेट किया हम्म बेसिकली, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो हेमराज। जब हम हम्म डिस्कशन में होते हैं तो हमें अपनी बात और लोगों को समझानी जरूरी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ चीज है, ठीक। क्योंकि एक लेमैन में बात कर रहे हैं, हम फैमिली के बीच बैठे हैं, दैट्स ओके, उनको हमारी बात समझ आ हम्म जाएगी। बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर द जीडी ग्रुप डिस्कशन, we have to that make our ideas so clear that everybody should understand. All right, Hemraj? ऑल राइट मैम। ठीक है, yes. Okay, Rishabh, are you there? यस मैम। ऋषभ, आज आपने मतलब पहले से थोड़ा और बेटर किया, ये आपका आई थिंक सेकंड इंटरेक्शन था। ठीक है, आपने बोला एथिक्स शुड बी देयर, एथिक्स होने चाहिए बिजनेस में, एथिक्स होंगे तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, लाइक दैट, है ना। ठीक बोला, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन पे, बॉडी लैंग्वेज पे अभी भी आपको काम करना है। ऐसे जो फेशियल एक्सप्रेशन वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगने चाहिए, थोड़ा सा एक वॉइस में एक प्रॉपर एक बोल्डनेस होनी चाहिए कि हाँ आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, आप 5 लोगों से बात कर रहे हो, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। ऑल राइट ऋषभ, ठीक है, पॉइंट सारे अच्छे दिए, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी नहीं है, बट थोड़ा और क्वालिटेटिव कंटेंट भी हो सकता है और बेटर हो सकता है। ठीक है, मेक योरसेल्फ सो बोल्ड कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो प्रूफ भी हो जाए कि हाँ वो बोल रहा है तो वो ठीक है। ऑल राइट, ओके मैम। या दानिश, आर यू देयर? Yes, ma'am. दानिश, आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी रहती है हमेशा, आप बड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो, आप जल्दी से अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हो, दैट इज गुड थिंग। आप पॉइंट्स भी ठीक बोलते हो, कुछ इंग्लिश बोल रहे हो कुछ हिंदी बोल रहे हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, पॉइंट्स ठीक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ जो स्टार्टिंग के पॉइंट थे कि एथिक्स होने चाहिए बिजनेस में, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो सब लोगों के थोड़े सिमिलर थे। आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, जैसे एक ने बोला कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड मतलब अगर कोई और स्टार्ट करे तो उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर रहा हो कि, है ना, कि लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, या फिर ये वाले जो एरियाज है यहाँ पे एथिक्स होने बहुत जरूरी है बिजनेस में। ठीक है दानिश, तो Okay. आपको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन वेरिएशन देखनी है। Okay. ऑल राइट, Okay. या रीना, आर यू देयर? Yes, ma'am. रीना, यू हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक वेरी वेल, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, आपने बहुत क्लियरिटी से इंट्रोडक्शन की, लेकिन कुछ टर्म्स थी वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, तो वो अगर हम टर्म्स कुछ ठीक है आप यूज करो, या तो उनको बहुत ही जस्टिफिकेशन से यूज करो। ठीक है, कि हाँ सबको लगे कि नहीं इसने बड़ा स्ट्रांग पॉइंट दिया, या फिर अगर आप ऐसे टर्म्स यूज करो तो वो लगेगा कि आप बायसनेस कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, और भी तो लोग काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। हाँ वो मैं आपका पॉइंट समझ गई कि वुमेन का भी होना चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि एक मेल जो कैंडिडेट होता है वो बड़ी आसानी से सोच लेता है बिजनेस करने की, वेयर एज जो अदर फीमेल कैंडिडेट होती है उसको थोड़ा सा और पुश करना पड़ता है, चीजों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो आप उस चीज को वैसे भी एलैबोरेट कर सकते हैं रीना। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर द जीडी, आपने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन आप मेरे को थोड़े स्लो प्रोसेसिंग में लगे। ठीक है,
आप थोड़ा और भी तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, थोड़े और पॉइंट्स भी दे सकते थे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया लास्ट में कि मैम कुछ ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है कॉर्पोरेट सेक्टर में है, हम अपना प्रॉफिट देखेंगे। और प्रॉफिट के लिए अगर हम अनएथिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं दैट इज ओके, बट अनएथिकल जो एक्टिविटीज हैं ठीक है, बट वो किसी हद तक होंगी ना रीना, हम उस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो उस अनएथिकल एक्टिविटी में हम इतने सारे लोगों को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। एथिकल इन बिजनेस का मतलब है कि एम्प्लॉय कस्टमर जो भी हैं, जो भी हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस टेकर हैं, ठीक है, उनका सबका रिलेशन अच्छा हो। ऑल राइट, तो रीना आपके पॉइंट्स क्लियर हैं, बट आप थोड़े से पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके मैम। ऑलराइट, ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को थोड़े जर्नल पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। ये टॉपिक बहुत अच्छा था कि रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, ठीक है। अब एथिक्स जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमारी वेजेस होती हैं, है ना। 3 डोमेन थे हमारे बेसिकली डिस्कस करने के, एरियाज ऑफ एथिक्स जहाँ पे एथिक्स होने चाहिए, चैलेंजेस क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स से, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी, ठीक है। ऑल ओवर द एनवायरमेंट प्रॉपर रहता है, ठीक है, और एक सेल्फ मोटिवेशन भी आती है, लाइक दैट। बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, बिजनेस भी तो वो इंसान तभी करेगा ना जब उसके पास एक टीम होगी, टीम वर्क कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो टर्म्स को, ठीक है। जब आप एरियाज ऑफ एथिक्स की बात करो कि कहाँ कहाँ होना चाहिए, जब हमारी वेजेस की बात आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है और हमें पैसे कम मिल रहे हैं या हमारी सैलरी कम है, लाइक दैट। तो उसको भी आप पॉइंट को इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 डोमेन थे, तो आप तीनों डोमेन के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट थे, तो आप उन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये चैलेंजेस में देखो, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट भी है, ठीक है, और वो आपको वेजेस भी ठीक दे रही है, जितना आपका काम है उतना वो आपको वेजेस भी दे रही है। बट व्हाट अबाउट एम्प्लॉयज बिहेवियर, अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर ठीक नहीं है, अगर वो प्रॉपरली काम करके नहीं दे रहा है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे चैलेंजेस आएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सैलरी भी रोकेगी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसे पॉइंट्स को भी आप थोड़ा सा रेज कर सकते हो इन योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। ऑलराइट फ्रेंड्स, All right, fine. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? Yes, ma'am. यस मैम। या थोड़ा सा अपनी पेस को मेंटेन कीजिए, ठीक है? और अपने कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट्स को रखो, और जो भी आप बोल रहे हो बहुत लंबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और भी कैंडिडेट हैं, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ऐसा लगे कि आप फ्रेजेस दे रहे हो। ऑलराइट, तो इट शुड बी इन बैलेंस, एंड थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेटिव होना है, अपॉर्चुनिटी सीकर होना चाहिए कि हाँ हम कब हम अपनी टर्न ले अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें और हम अपना पॉइंट रखें। ऑलराइट, तो ग्रुप डिस्कशन में तभी मजा आता है जब सब लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हो, और वैलिड थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप रख सकते हो, तब और ज्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, जिसका फर्स्ट सेशन था दैट इज ओके, कोई बात नहीं, हम और अभी लर्न करेंगे, और जिनका सेकंड था उनको भी अपनी चीजें थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी है। ऑलराइट, Yes, ma'am. या तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, लाइक डू यू वांट टू आस्क टू मी एनीथिंग? आदित्य, मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन में पॉइंट थोड़े अच्छे हो, मतलब बहुत लंबे ना हो। अगर आप कंक्लूजन भी ले रहे हो तो कंक्लूजन भी प्रॉपर एक पैटर्न में होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं हो, ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।